अब हम ये एक्सपेरिमेंट में हम वुडन और एल्यूमिनियम पाइप की कंबाइंड रॉड लेंगे एंड वील पुट वन पेपर ओवर इट एंड वील पेपर विल चार only where it is covered with wooden cylinder, remain unscorched when where it is covered with aluminium pipe. This shows aluminium conducts heat while wood does not. We can say aluminium is a good conductor of heat, wood is not. इसलिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ से हीट आगे चली जाएगी. Now water is a bad conductor of heat and this can be shown by the following activity. We'll take one test tube, we'll put ice piece inside the water, then we put some piece of we will put some क्या कहते हैं iron gauze over it. We will drop the ice piece in the test tube. It will sink in the bottom of the test tube. ठीक है, and we'll put one iron gauze. Then we'll start boiling it, holding the test tube with the holder near the mouth. We'll see that water near the mouth of the test tube begins to boil, but the ice piece in the bottom remain like this, does not melt. This shows water is a bad conductor of heat. यहाँ पे बॉईल कर रहे हैं, यहाँ वो हो रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा है. ठीक है. Now mercury is the good conductor of heat. It is used in thermometers. That's why it is used in thermometer. Air is a poor conductor of heat. For this we'll take wax in a test tube and we will keep the test tube cork close and we'll start heating this test tube near the mouth. Upon heating, air expands and pressure increases. With high pressure, air pushes the cork out, but wax remains solid, showing air is a bad conductor of heat. Now application of conductors and insulator in daily life. ठीक है. पहला oven में space between the wall double walled होता है and space between the wall is filled with wool and cork. The wool and cork are insulator of heat. ठीक है. देन कुकिंग यूटेंसिल्स पैन जो रहते हैं वो कॉपर, ब्रास और स्टील के बनते हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे हीट अप इज रैपिडली. ठीक है. कुकिंग यूटेंसिल्स पैन, टी केटल के हैंडल्स मेड अप ऑफ एबोनाइट और वुडन बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इंसुलेटर्स, सो वी कैन होल्ड द यूटेंसिल्स कंफर्टेबली बाय देयर हैंडल्स. आइस बॉक्स जो होता है डबल वॉल्ड होता है. इनकी डबल वॉल इज फिल्ड विथ कॉर्क, ग्लास और वुल. द फिलिंग मटीरियल इज इंसुलेटर ऑफ हीट, सो दे प्रिवेंट heat from outside to pass inside the ice box and also kept inside, and ice kept inside the ice box does not melt. In summer, ice kept wrapped in gunny bag, बोरे में रखते हैं या sawdust बुरादे में रखते हैं क्योंकि gunny bag and sawdust have pores and air filled in this pore, and this will act as insulator of heat, so air does not allow heat from outside to pass through in the ice, so prevent ice from rapid melting. Now we use warm cloth in winter. Woolen cloth has fine pores and air filled in these pores. Wool and air act as insulator of heat, so it keep our body heat of the body. It keeps our heat of the body around us, avoid escaping of this heat into the environment and keep us warm. During very cold weather, water pipes are covered with cotton. Cotton has air trapped inside its fine pore. Cotton and air are insulator of heat, so they do not pass heat from water inside the pipe to the outside atmosphere. Cotton prevent water pipe from freezing. ठीक है. Quilts are filled with fluffy cotton and air trapped in the fine pores of the cotton. So cotton and air insulator of heat. It prevent our body. It prevent heat from our body to escape
एंड कीप अस वार्म। हमारी जो बॉडी की वार्मथ रहती है वो क्विल्ट के अंदर जो एयर ट्रैप है उससे ट्रैप रही आती है, बिकॉज कॉटन एंड एयर ट्रैप्ड एक्ट एज इंसुलेटर, और हमारी बॉडी की हीट बाहर ठंडे इन्वायरमेंट में लॉस नहीं हो पाती। न्यूली मेड क्विल्ट्स आर वार्मर देन ओल्ड वन बिकॉज ओल्ड क्विल्ट हैज लेस एयर ट्रैप्ड इन इट। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यूली मेड क्विल्ट्स आर मोर वार्म, व्हाई? ठीक है, नाउ कमिंग टू on a cold day, steel chair feels colder than wooden chair because steel is a good conductor of heat. It takes heat from our hand and we feel cold. Wood is a insulator of heat, so it does not take heat from our hand, so we feel warm. On the other hand, hot day पे steel chair will feel warmer than wooden chair because steel chair will pass heat from the chair to the hand while वुड विल नॉट। वुड इंसुलेटर है इसलिए उसका टेम्परेचर हमेशा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रहेगा उसके अपोजिट ही रहेगा। नाउ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द मीडिया। सॉलिड डू नॉट हीट बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इज ऑलवेज वर्टिकली एक्ट। कन्वेक्शन में हमेशा वर्टिकली अपवर्ड कन्वेक्शन करंट बनता है। जब हम गर्म करते हैं तो नीचे के मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ जाता है, और मूवमेंट बढ़ने की वजह से वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जिससे यहाँ की डेंसिटी कम हो जाती है, लेस डेंसर चीज़ें ऊपर जाने लगती हैं, और नीचे की तरफ डेंसर वाटर आने लगता है। तो ये एक कन्वेक्शन करंट चालू हो जाता है। एज अ रिजल्ट डेंसिटी ऑफ द मीडिया नियर द सोर्स ऑफ द हीट बिकम लेस एंड इट बिकम लाइटर। द लेस डेंसर मीडिया ड्राइजेज अप एंड द डेंसर मीडिया अबव गोज डाउन एंड दिस करेंट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करेंट। ठीक है, कन्वेक्शन इन लिक्विड, अपन पोटेशियम परमैग्नेट डालें, बॉटल लें और उसमें एक पोटेशियम परमैग्नेट डालें, 3/4 वाटर से भरें फ्यू ड्रॉप्स पोटेशियम परमैग्नेट डाल के फिर उसको बॉईल करना शुरू करें। वी विल नोटिस दैट फाइन स्ट्रीम ऑफ कलर्ड वाटर स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द बॉटल, इट राइजेज अपवर्ड एंड रीचेज टू द टॉप of water and circle down along the side of the bottle. This stream will represent convection current. ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, नाउ अगेन ये वाला तुमको मालूम है, कैंडल वाला मुझे नहीं समझ में आया, तुम्हें आया था समझ में, तुम जानो कैसे पढ़ना है, पढ़ लेना अपने बुक में। फिर कन्वेक्शन के डेली यूजेस। वेंटिलेटर एंड विंडोज जो रहती हैं वो टॉप पे बनाई जाती हैं because warm air is less dense and it is lighter than cold air, so it rises up and can move out through ventilator. That's why ventilators are kept at the height. Then the cold fresh air come in the room from the windows जो कि नीचे है, and continuous circulation of fresh air is maintained. Chimneys are provided over furnaces in factory because hot gases come out of furnaces are less dense than air. They rise up, so chimney can through the chimney, and smoke and fumes around the furnaces rush in so that they take the place of they sucked out. चिमनी से गर्म हवा ऊपर निकल जाएगी और फ्रेश एयर साइड से आ जाएगी अंदर। Land breeze, sea breeze are formed in near the sea is because of convection current. ठीक है, so important land breeze मतलब लैंड की हवा। लैंड की हवा कहाँ चलेगी? लैंड से सी की तरफ। लैंड ब्रीज मूव्स टुवर्ड्स सी। कब वो चलेगी? जब समुद्र की हवा ऊपर उड़ जाएगी, खाली हो जाएगी वहाँ जगह। समुद्र की हवा ऊपर कब उड़ेगी? जब समुद्र की पानी के पास में गर्म ज़्यादा होगा। समुद्र का पानी गर्म कब होगा? समुद्र का पानी गर्म तब होगा जब रात रहेगी। दिन में चट्टान गर्म होती है, रात में पानी गर्म होता है। पानी देर से गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है। ठीक है, तो नाइट में सी का पानी गर्म रहेगा और जमीन ठंडी हो चुकी होगी, तो वहाँ का हवा ऊपर चली जाएगी। सो लैंड ब्रीज विल मूव टुवर्ड्स द सी एंड sea breeze मतलब sea breeze will move towards land. sea breeze will occur during daytime. sea की breeze डे के टाइम मिट्टी जल्दी गर्मी होगी और वहाँ की गैस ऊपर हो जाएगी, तो sea breeze towards land चलेगी, क्योंकि वो देर से गर्म होगा। पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, और चट्टान और मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडे होते हैं। ठीक है, ओशन करंट ऑफन flow in the surface and below the surface of ocean. Ocean current is caused due to convection current in ocean. Ocean water near the equator
इक्वेटर का पानी ज़्यादा गर्म होता है, इक्वेटर पे हीट ज़्यादा होती है तो वहाँ का पानी गर्म हो जाएगा और वो पोल की तरफ जाएगा, ठीक है, नहीं ऊपर उठ जाएगा। तो क्या होगा, और पोल का पानी गर्म होगा तो वो नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से कन्वेक्शन करंट चलेंगे ओशन में। कन्वेक्शन करंट ऑफ वार्म वाटर फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ ओशन फ्रॉम इक्वेटर to pole, while below the surface of ocean current of cold water will move from pole to equator, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर में we keep the cooling chest at the top, क्योंकि गर्म हवा, जो भी गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठ के आएगी। what the reason is that air near the top in the contact with freezing chest get cooled and it will become more denser and it will go down, and again the warmer gas will come up and again it will cool down by the chest near the top, cooling chest, and it will again cool down and it will become more denser and go down। इस तरीके से रेफ्रिजरेटर के टॉप पे जो रहेगा कूलिंग चेस्ट वो चीज़ों को ठंडा करता जाएगा। हीट इंसुलेशन ऑफ अ रूम इन अ हाउस, for heat insulation of a room in the house, weather stripping and curtains are used। कर्टन यूज करने से क्या होता है, कर्टन यूज करने से कांच के ऊपर एक, विंडोज के ऊपर एक कवर बन जाता है और वहाँ एयर ट्रैप हो जाती है, तो स्टिल एयर बिटवीन द विंडो एंड द कर्टन रहा आता है, जिससे कमरा गर्म हो जाता है। रूम हीटर एंड ब्लोअर्स आर केप्ट नियर द फ्लोर, जिससे क्या होता है, गर्म हवा निकलती है और वो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, और जो ऊपर ठंडी हवा होती है वो नीचे आती है, तो नीचे ठंडी हवा आएगी, वो फिर गर्म होके ऊपर। तो इस तरीके से कन्वेक्शन करंट रहेगा। एसी अपन टॉप पे लगाते हैं, एसी हम टॉप पे लगाते हैं, उसके पास में लगाते हैं, क्यों? क्योंकि एसी से ठंडी हवा निकलेगी और वो नीचे बैठ जाएगी, और जो नीचे की गर्म हवा रहेगी वो लेस डेंस होने की वजह से ऊपर उठेगी, उसको एसी ले लेगा और ठंडी हवा दे देगा, तो कन्वेक्शन करंट बन जाएगा। कोई भी फायरमैन यदि जलते हुई बिल्डिंग में घुसेगा तो क्रॉल करके जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में, जैसे किसी कमरे में आग लगी है तो ऊपर वाले पार्ट में ही सारी गर्म हवा इकट्ठी होगी, तो वो नीचे से क्रॉल करके जाएगा तो वो जलेगा नहीं। ऊपर इतनी गर्म हवा और स्मोक इकट्ठा होगा कि वो यदि ऊपर से कांच फोड़ के कूद के घुसेगा कमरे में तो मर जाएगा। अब नाउ कमिंग टू रेडिएशन। रेडिएशन इज द प्रोसेस by which heat transfer, in which heat directly passes to one body to another from higher temperature to lower temperature without medium. No medium is required for the transfer of heat in radiation, ठीक है। We sit in the sun, we feel warm because of radiation. We sit in front of fire, we feel warm because of radiation, ठीक है। We blow a bulb and we feel warm below the bulb because of radiation. Above the bulb we feel warm because of convection current, लेकिन below हम उसके रेडिएशन की वजह से। हीट रेडिएशन आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मल रेडिएशन और सिंपली रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की ही एक वो है, जैसे यूवी रेज विबग्योर और इंफ्रारेड होते हैं, तो विजिबल रेंज है विबग्योर और इंफ्रारेड उससे ज़्यादा क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड वाली हैं और फ्रीक्वेंसी कम है। तो हीट रेडिएशंस आर द टाइप ऑफ लाइट रेडिएशन। हीट रेडिएशन गिव्स सेंसेशन ऑफ हॉटनेस बट नॉट द सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है। अब बॉडी विच एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट लेस बिकम वार्मर, while the body which absorb less radiation reflect more become less warmer, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब रेडिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है? ब्लैक और डल कलर के जो क्लोथ सरफेस रहते हैं एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट लेस रेडिएशन, और जो वाइट और शाइनी कलर के कपड़े होते हैं वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा करते हैं, एब्जॉर्ब कम करते हैं, तो उनको पहनने में गर्मी कम लगती है। दैट इज़ वाई वी प्रेफर वाइट कलर एंड लाइट कलर कपड़े ड्यूरिंग विंटर। जाओ यहाँ से। इसमें वाइट कलर और शाइनी कलर के कपड़े ड्यूरिंग समर, क्योंकि इसमें गर्मी कम लगती है, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। जबकि डार्क कलर के कपड़े ठंडी में पहनना अच्छा होता है क्योंकि वो सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, तो वी फील वार्म, ठीक है। नाउ बॉटम पार्ट ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल और पैन इज पेंटेड ब्लैक, तो
तुम देखो जो कढ़ाई रहती है उसके नीचे जो रहता है ब्लैक पेंट करते हैं, या जो तवा रहता है वो काला रहता है, क्यों? सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब मोर हीट एनर्जी एंड बिकम मोर हॉट, ठीक है। रूम हीटर्स आर प्रोवाइडेड विथ शाइनी रिफ्लेक्टर्स। रूम हीटर जो रहते हैं उसके पीछे से कांच का पूरा रिफ्लेक्टर रहता है। इससे क्या होता है कि वो ज़्यादातर जो हीट है रेज हैं उनको रिफ्लेक्ट करके दे देंगे, तो कमरा ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होगा। इट इज़ कूल्ड इन शेड बिलो द ट्री बट नॉट लिटिल अवे फ्रॉम इट, बिकॉज बिलो द ट्री देयर इज ट्रांसपिरेशन, वी फील ठंडा, एंड ऑल्सो there is less sunlight, so we feel cold. But little away from tree, the air is trapped between the leaf, which is bad conductor of heat, so we feel warm little away from it, ठीक है। A red hot ball is suspended from the roof with a thin metallic wire. It will lose heat by conduction convection through the air moving around the ball, by conduction through the metal wire, and radiation from the ball and wire in the surrounding, ठीक है। To reduce the heat loss by radiation from the surface, it is made shiny, ठीक है। अब कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन के डिफरेंस तुम बुक खोलो और लर्न कर लो, 4-5 डिफरेंस है, ठीक है। और थर्मस फ्लास्क क्या है? थर्मस फ्लास्क एक स्पेशल काइंड की बॉटल है विच इज़ यूज टू कीप हॉट और कोल्ड लिक्विड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जो भी लिक्विड इनसाइड रहेगा द टेम्परेचर विल मेंटेन फॉर फ्यू आवर्स। इट इज डबल वॉल्ड ग्लास बॉटल विच there is a vacuum between the walls and both the walls made shiny on the vacuum side. Inner side of outer wall is silvered and outer side of inner wall is silvered, and vacuum is present between the wall. The mouth of the bottle is fitted with a cork and with cork stopper. The bottle is enclosed in a plastic case with the help of cork piece and spring at base for shock absorber. The case is provided with a cap over the stopper, ठीक है। Vacuum is between the walls of the bottle to prevent any transfer of heat. Conduction और convection बंद हो जाएगा जैसे vacuum रहेगा, and shiny surface inside the outer wall and outside the inner wall will reduce the heat transfer by radiation. Cork stopper prevent transfer of heat by convection. Thus, the transfer of heat either from inside to out and outside to in is very little in these bottles. So, the temperature remain constant for a longer period. ठीक है। अब ये the temperature of two bodies difference ये बन जाएंगे तुमसे। कन्वर्ट करना 10 डिग्री को फ़ारेनहाइट में, ठीक है, बन जाएगा तुमसे। केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना बन जाएगा डिफरेंस। और ये नॉर्मल टेम्परेचर इतना है 37 डिग्री, अभी तुम्हारे साथ हुआ था वो, तो उसको फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कन्वर्ट करो। 37 डिग्री इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है।